Highway Alam is a rag picker who roam around the city in the search of valuables in the stockpiles of garbage. वो अपने काम में खुश तो था, इस एडवेंचर में खुश था जहां पे उसे अपनी मर्जी से काम करना पड़ता था, लेकिन गरीबी के कारण he had to opt a job at a tea stall where he no longer remains his own boss because now he had to work under somebody else. ये जो कहानी है लॉस्ट स्पिनिंग की, वो हमें ऐसी ही कई सारी जिंदगियों की कहानी बताती है उस पूरी दुनिया में जहां लगभग 200 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी का शिकार में हैं, who suffer through such kind of miserable lives and face regular challenges due to the existence of poverty. So in this presentation, I'm going to talk about the poverty across the spectrum and how this entire world is dealing with this problem. And definitely we will see different dimensions of poverty in India as well as around the world. कि क्या भारत गरीब है या फिर जबरदस्ती पूंजीवादियों के द्वारा गरीब बनाया जाता है। हम इन्हीं कुछ सीधे क्वेश्चंस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे गरीबी का श्राप इस दुनिया में अंधकार फैला रहा है। So first of all, we will understand the definition of poverty. What is poverty all about? Poverty is a situation जहां पे किसी व्यक्ति के पास शायद से कोई भी बेसिक फैसिलिटी ना हो, जैसे फूड, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसकी इनकम इतनी लो है कि वो इन सारी चीजों तक को अफोर्ड नहीं कर पाता, जहां जिसका जीवन चलाने के लिए इतनी जरूरी चीजें हैं वो तक उसके एक्सेस में नहीं है। If we talk about the classification of poverty, then it's given in the following ways, like the absolute poverty, relative poverty, situational poverty, generational poverty, rural poverty and urban poverty. तो सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी. It is that poverty in which one faces deprivation of basic facilities like food, health, education, and shelter, etc. Now I will give you the example of absolute poverty, जो आपके लिए डाइजेस्ट करना शायद से थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे पैसे वाला देश हैज 3.79 करोड़ पीपल इन पॉवर्टी. एंड एज पर दिस डेटा आपको अजीब लगेगा कि अमेरिका में भारत से ज्यादा लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं. और इन ऑर्डर टू नो द रीजन बिहाइंड दिस, प्लीज स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ दिस टॉक. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिलेटिव पॉवर्टी, then it is a situation when someone's income is less compared to their surroundings. For example, लंदन जैसे शहर में 25% पॉपुलेशन, दैट इज 2.2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रिलेटिव पॉवर्टी के दायरे में गिरते हैं, जबकि यूके में 2021-2022 के डेटा के हिसाब से 1.4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के खांचे में आकर गिरते हैं. अगर तीसरी गरीबी के क्लासिफिकेशन में हम आगे बढ़े, विच इज द सिचुएशनल पॉवर्टी, which evokes due to the emergencies like natural disaster, mass layoff, civil unrest, and poor government regulation over the market. In this type, one fall into poverty due to some emergency situation, although one was not poor earlier. This type of poverty can be easily understood with the scenario of Europe, जहां लगभग 9.54 करोड़ लोग 2021 में सिचुएशनल पॉवर्टी के शिकार बन चुके थे. उन्होंने ऐसी पॉवर्टी का सामना करा था, ऐसी परिस्थिति उनके सामने आई कि उन्हें सिचुएशनल पॉवर्टी का सामना करना पड़ा. एंड ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ राइजिंग इनकम इनइक्वालिटीज in Europe and high unemployment rate in Europe, where unemployment rate in Europe stands at the rate of 5.9% since November 2023. The fourth one is a generational poverty. As the word express, this type of poverty is passed to generations, जहां कई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी पास होती जा रही है. Where someone has born in a poor family where he does not have access to all the basic facilities, now his entire life can be full of struggles. It is one of the worst forms of poverty, क्योंकि यहाँ पर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है. एक गरीब परिवार में पैदा हो गए, फिर से गरीब हो गए, फिर आगे चल के यही साइकिल रिपीट होती रहती है. Now his entire life can be full of struggle. And this type of poverty can be traced in the sub-Saharan
रीजन ऑफ अफ्रीका, जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और इसी वजह से पीपल आर डूम्ड टू रिमेन इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी फॉर जनरेशंस, रिजल्टिंग इनटू जनरेशनल पॉवर्टी. The fifth one is rural poverty. As per the reports of World Bank in 2023, लगभग 64% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, which are also home to more than 80% of countries poor. 80% पाकिस्तान का गरीब आपको गांव के क्षेत्र में ही मिलेगा. हालत इतनी खराब हो चुकी है कि 40% पाकिस्तान की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रही है, as per the data of the World Bank, which I am providing here. Now, if I move to the last classification of poverty, then it is the urban poverty, where people who are living in the urban areas suffer through problems of low income, which led to unaffordable urban lifestyle in terms of housing, rent, transportation, etc. This led to creation of terms like urban poverty. Under this poverty, we can see the example of Mumbai. Despite being the financial capital of India, Mumbai faces the problem of poverty. More than half of its population is under the urban poverty, where majority of the people are living in the Dharavi slums, जो कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे धारावी स्लम्स की कंडीशंस कितनी क्रिटिकल हो चुकी है. दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स में हमें धारावी स्लम्स देखने को मिलता है. So in this way, we have understood the definition, classification of poverty and how different parts of the world fall in the category of poverty. Now let's move to understand what are the basic reasons behind the rising poverty. हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ तो पता ही है कि गरीबी होती क्यों है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन के कारण, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एटसेट्रा. But among all these reasons, I'm going to discuss some primary reasons behind the lasting nature of poverty, such as having a large population. If you take a look at India's population, then it has crossed all the boundaries by touching the number of 142.86 crore, surpassing the erstwhile largest populated country, China. हमने चाइना तक को पीछे छोड़ दिया है, जो एक जमाने में इस दुनिया का सबसे ज्यादा populated country था. Thus, India has become the largest populated country in the world, and this problem creating burden on India's resources, disturbing the supply and demand, which can trigger the problem of poverty in future. अभी की नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमें हो सकता है ये और ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस देखने को मिले भारत में. अभी तो हम डेटा के साथ में देखेंगे कि क्या सिचुएशन रह रही है भारत की. So another major reason behind the poverty is lack of employment. If I take the example of India, then it is facing total number of 3 crore 30 lakh people having problem of unemployment. That stands at the rate of 8.7% compared to its neighbor countries like China, which has unemployment rate of 5.2% and 4.7% that of Bangladesh. एक और जो बहुत बड़ा कारण है गरीबी जैसे शराब को उकसाने का, वो है द राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज. Estimates of the United Nations Development Program indicate that by 2030, more than 10 crore people could fall back into extreme poverty due to climate change, while over 20 crore people could be displaced due to more frequent and severe climatic disasters. The condition has become so worse कि दुनिया की जो जीडीपी है वो तैयार हो चुकी है कि वो $2.4 billion से नीचे गिर जाए. It is ready to shrink by $2.4 billion just because of excessive heat that's impacting the working class people like you who have come here and I, who we are working together to build a nation, but our productivity is going to decline by 2030. अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो हम काम के लिए बाहर भी नहीं जा पाएंगे, हम काम ही नहीं कर पाएंगे, और जब काम नहीं कर पाएंगे तो इनकम लो होगी, और जिसके कारण हमें पॉवर्टी की जैसी सिचुएशन को देखना पड़ेगा. And these data and reports which I am presenting here comes from top organizations like World Economic Forum and the United Nations. As I said, the devastating effect of climate change is going to appear on the least developed countries or developing countries like India. In fact,
The RBI, Reserve Bank of India, estimates that up to 4.5% of India's GDP could be at risk by 2030. 4.5% इंडिया की जीडीपी खतरे में आ जाएगी 2030 तक। क्यों? क्योंकि लोग काम करने के लिए बाहर जा ही नहीं पाएंगे, ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको एक्सट्रीम हीट का सामना करना पड़ेगा, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ेगा और डस्ट स्टॉर्म्स का सामना करना पड़ेगा। बाहर निकलेंगे ही कैसे? The warning sign has become so scary that as per the reports of World Bank, India may account for 3.4 crore of the projected 8 crore global job losses. 3.5 करोड़ नौकरियां तो भारत में खत्म होने वाली हैं 2030 तक। क्यों? क्योंकि हीट स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट में इतना परिवर्तन आ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में सब कुछ ध्वस्त होने वाला है। अभी तक तो मैंने आपको भविष्य में होने वाले खतरे से अवगत कराया है, लेकिन अब मैं आपको परिचित कराता हूं उस नुकसान से जो हमारा देश भारत पहले से ही झेल चुका है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। From 1998 to 2017, our country has lost around $79.5 billion just because of climate change. और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात अब जो बताने वाला हूं वो है जहां पे भारत ने अकेले ही $69 बिलियन का नुकसान झेला 2019 में क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स के कारण। और इन $69 बिलियन में द लॉस ऑफ $10 बिलियन इज ओनली एसोसिएटेड विद इंटेंस रेनफॉल एंड फ्लड्स। और इसी 2019 के साल में भारत के 14 राज्यों में लगभग 18 लाख लोग उथल पुथल हो गए, जबकि 1800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और वहीं 1.2 करोड़ लोगों ने बहुत ही बुरा असर देखा क्लाइमेट चेंज का। और अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बताने आ गया तो शायद से आज की टॉक खत्म ही ना हो पाए, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज तो वो हमारे सामने बिल्कुल साफ रखे हुए हैं, प्रेजेंटेशन में है, पीपीटी में देख सकते हैं हम, जहां पे फूड इन्फ्लेशन इज पुशिंग पीपल बैक इनटू पॉवर्टी। लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जून 2023 के जून के महीने में टमाटर का भाव हमें 30 से 40 रुपए पर केजी देखने को मिल रहा था, लेकिन एक महीने के अंदर टमाटर का भाव इतनी तेजी से बढ़ा कि हमें 100 से 110 रुपए किलो टमाटर मिलने लगे। ठीक इसी तरह प्याज का भाव भी 327% ऊपर उठ गया 2019 में, और वो समय था जब टमाटर पनीर के साथ टक्कर ले रहा था मार्केट में। And why did all this happen? It happened because of the heat waves, cyclones and scanty rainfall. हमारा जो वातावरण है वो सुधरने के तुलना में 10 से 100 गुना ध्वस्त हो रहा है, 10 से 100 गुना तेजी से ध्वस्त हो रहा है। Thus, it's clear that the majority of the people living in poverty rely on agriculture and natural resources to survive. इन लोगों के लिए क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जैसे हद से ज्यादा बारिश होना, सूखा पड़ना, जीवन और मृत्यु के समान हो चुका है। तो अब तक तो हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी कैसे ट्रिगर हो रही है। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में ये आता है कि हमारे पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो सरकारें हैं इंडिविजुअल लेवल पे वो क्या काम कर रही हैं, हाउ मच वी हैव अकम्प्लिश्ड इन रिड्यूसिंग दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट आर आवर फ्यूचर प्लान्स। इफ आई टॉक अबाउट एट द ग्लोबल लेवल तो यूनाइटेड नेशंस सबसे बड़ा ग्रांट असिस्टेंस प्रोग्राम चलाता है क्लाइमेट एक्शंस को टैकल करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, जहां पे विद ओवर $3 बिलियन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन ओवर 140 कंट्रीज आर वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड। अ टॉप प्रायोरिटी is to accelerate local action and build the resilience of the poor. At the country level, UNDP serves as a platform. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे लिए प्लेटफॉर्म देता है कि हम वहां पर सब लोग पहुंचे, साथ मिलकर कुछ सॉल्यूशंस बनाएं जो कि जिससे हम एक बेहतर दुनिया बना सकें और जो परेशानी है उनको खत्म कर सकें, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी जैसी। Meanwhile, if we look at India, the Indian government brought some structural changes in the education sector under the National Education Policy of 2020, where it emphasis on vocational training हो सके बच्चों की, उनका स्किल सेट डेवलप हो सके, और जब स्किल सेट डेवलप होगा तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस और ज्यादा बेहतर मिल सकेंगी। इंडस्ट्रीज में ले लें, स्टार्टअप इकोसिस्टम में ले लें, जहां कहीं भी ले लें। This will provide jobs to the youths and prevent them falling in the cycle of poverty. Apart from this,
भारत ने सबसे कुशल और महत्वपूर्ण कदम जो उठाया है गरीबी को खत्म करने का, वो है एमजी नरेगा के जरिए, which stands for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which is one of the largest public works program in the world. अकेले इसी एक्ट के कारण लगभग 32% गरीबी कम हुई है भारत में, और लगभग 1.5 करोड़ लोगों को बचाया गया है गरीबी के खांचे में, गरीबी जैसे श्राप के द्वारा चपेट से आने से बचाया गया है इस एमजी नरेगा के जरिए। और इन ऑर्डर टू बूस्ट द एम्प्लॉयबिलिटी कंडीशंस इन इंडिया, भारत सरकार ने अटल इनोवेशन जैसे मिशंस को बढ़ावा दिया है, जहां कई सारे स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं, जिससे बच्चों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट विकसित हो सके और बड़े पैमाने पर 6 से 12th क्लास के बच्चे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को डेवलप कर सके। और इसी के परिणाम स्वरूप 2200 startups have got benefit from this mission, and there is more good to go with. And to address the climate change, India has already launched its National Action Plan on Climate Change in 2008, under which our nation is building resilient solar energy infrastructure, promoting sustainable agriculture, ensuring strategic knowledge on climate change to reduce its devastating impacts. और इन्हीं सारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप एज पर द ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ 2023, भारत ने लगभग 45 करोड़ लोगों को गरीबी जैसे परेशानी से मुक्त कराया है पिछले 15 सालों में। और अब मैं वही डेटा आपको बोलूंगा जिसका शायद आपको इंतजार होगा। हम सभी लोग स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी मूवी देखकर बड़े हुए हैं, जहां वेस्टर्न कंट्रीज हैव ऑफ्टन मॉक्ड इंडिया फॉर बीइंग अ कंट्री ऑफ पुअर्स। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो एज पर द डेटा ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक एंड द ब्रूकिंग्स, अ यूएस बेस्ड थिंक टैंक, जो एक्सट्रीम और एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो भारत से लगभग खत्म हो चुकी है, विद लेस देन 3% ऑफ द पॉपुलेशन नाउ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, व्हिच मींस केवल भारत में 3.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। केवल अब इतने ही बचे हैं, यानी 3% भारत की पॉपुलेशन, 3 से कम परसेंट भारत की पॉपुलेशन अब गरीबी में है। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें, जो हर जगह पर डेटा ऑर्गेनाइज कराता है, हर कंट्री में जा जाकर उनकी गरीबी बताता है, वहां पर 3.7 करोड़ लोग अभी भी पॉवर्टी में पड़े हुए हैं। अब मैं इसके फैक्टर्स नहीं बताऊंगा, जो डेटा है वो आपकी सामने है, स्क्रीन पर है, which you can check. As being the one of the most populous country, this is a great achievement for India since independence. But as a student of political science, I would like to give my opinion on what can be the effective way to address the challenge of poverty. We need to ensure a better political consensus at the global level, because this is not a small problem which can be solved by a single country. क्योंकि अंत में हमें पैसा, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक नॉलेज आपस में शेयर करनी होगी, जिससे हम एक सॉल्यूशन बना सके, जिससे हम इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकें। As I have noticed that we still need annual funding of $267 billion to end hunger and ensure upliftment of Sustainable Development Goal 1 of the United Nations, that is, end poverty in all its forms. So in this way, I would like to end my talk here. I know I have taken your precious time to elaborate the importance of this issue of all time, and I have completed my job here. Now it's up to you that how you share this knowledge to spread awareness and enlighten those who are ignorant to this problem. We need to remember कि अकेला इंसान सिर्फ कुछ कर सकता है, लेकिन जब हम सारे 7 लोग एक साथ आएंगे तो हम बहुत ही कुछ एक बेहतर कल बना सकेंगे, एक बेहतर सुधार कर सकेंगे समाज में। Now thank you very much once again. Thank you so much, Sambhav. Okay, so now we also have some questions from our listeners, and we would be taking those questions one by one. So the first question is from Ayush Raj. He is asking, to what extent, the reason for poverty can be blamed to the accumulation of wealth by the capitalist? And do you, by any chance, agree to the neoliberal understanding, which opposes, the general welfare schemes by government around the world and lays out that poverty is also a result of lack of talent and effort by individuals? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जैसे मैंने बताया कि भारत सरकार एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को
बेहतर करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन लेके आई है, जिससे वो सही कह रहे हैं, उनका कहना सही है कि पॉवर्टी जो है वो ट्रिगर होती है लैक ऑफ टैलेंट की वजह से। लोगों के पास टैलेंट नहीं है तो ऑब्वियसली उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, और भारत के अंदर ये एक कॉमन समस्या हमें देखने को भी मिली है, क्योंकि भारत के अंदर 77.70% के हिसाब से लिटरेसी रेट है, जबकि जब काम करने की बात आएगी तो लिटरेट तो हैं, एजुकेटेड नहीं है। तो इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार भी काम कर रही है। और मैं तो कहता हूँ कि आज जो एटमॉस्फेयर बना है, टेक्नोलॉजी का एटमॉस्फेयर बना है, आज हमें एक एक्सपोजर मिला है कि हम बहुत सारी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सीख रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा जो हमें एग्जाम्पल दिखता है वो जीएसटी से अपने आप में ही है, जहाँ पे हम स्पीच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आजकल लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स बन चुके हैं और वो लोग इनकम कमा रहे हैं। तो इनकम के जो रास्ते हैं वो हमारे सामने खुल चुके हैं, बस हमें थोड़ा खुद को अपग्रेड करना है, जो कि थोड़ा हमें समय जरूर लेंगे, लेकिन हमारे पास एक होप है। Okay. The next question we would be taking is from Shailendra. He is asking कि गरीबी से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए अनेक नीतियां होने के बावजूद हम परिणाम क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? देखिए, परिणाम प्राप्त करने की जो बात है वो अभी ही मैंने इसका डेटा दिया है कि भारत बहुत सारे प्रयास ऑलरेडी कर रहा है गरीबी को एड्रेस करने के लिए। और जैसे मैंने पेश भी करी चीज कि हमारे पास अभी जो गरीबी है वो केवल 3% से कम बची है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत के इतना बड़ा देश, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, और जब इतनी ज्यादा आबादी होती है, इतना बड़ा देश होता है, तो चीजों को रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे गवर्नेंस में भी थोड़ी दिक्कतें हैं, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी नजर में, हमने आजादी से लेकर जो सफर अभी तय करा है वो एक ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। और जिस तरीके से मैंने दिखाया, 3% से कम, ब्रिटिशर्स ने हमें क्या छोड़ा? ब्रिटिशर्स ने हमें एक गरीब देश बना के छोड़ दिया था। हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे, खाना नहीं था हमारे पास, कपड़े पहनने की तो बात की बात आती। लेकिन जो अभी हमने जो कुछ हासिल करा है, और हम जिस तरीके से, मैं कंपेयर भी इजीली मैंने करा अमेरिका का और भारत का, क्योंकि वहां की परचेसिंग पावर कुछ अलग होगी। लेकिन अल्टीमेटली बात यही आती है कि पॉवर्टी एस्टिमेशन चलेगा कैसे, कि हमारे पास एक्सेस है या नहीं है। अब आपका देश इतना बड़ा हो गया, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज हैं, टेक्नोलॉजी है, बिल्डिंग्स हैं, स्काई क्रैपर्स हैं, लेकिन आपके जो नागरिक हैं उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है। तो फिर ये क्या दिखावा है? तो भारत ने जो चीज अभी हासिल कर रहा है वो एक, मेरे हिसाब से तो एक कॉम्प्लीमेंट है, हमें इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जरूर बहुत ही आने वाले समय में हासिल करने वाले हैं। Okay. The next question is from Gaurav. He is asking that how do you think our country can solve the ever increasing gap between rich and the poor sections of the society? देखिए, इसका सबसे सीधा जो समाधान है वो है कि हमें जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसको हमें एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट, पहले एजुकेशन। एजुकेशन तो हमने जैसे देखा कि 77% लिटरेसी रेट हो चुका है, हर कोई पीएचडी कर चुका है, बीए करे हुए हैं लोग, एमए करे हुए हैं। खेल बन चुका है कि हाँ, 12th के बाद में यही सब होगा। लेकिन आज हमें कुछ और बेहतर करने की, हमें अपॉर्चुनिटी मिलने की जरूरत है, जो गवर्नमेंट को शायद से थोड़ा इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत हो चुका है और पॉपुलेशन इसका बहुत बड़ा कारण बन रही है कि डिस्पाइट हैविंग द opportunities, we are lacking to get access to all those things which we are supposed to, because of the rising competition। जबरदस्ती का कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी हो गई है, जैसे मैं बताया 142.86 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है। तो जब आबादी ही इतनी हो जाएगी तो हम सरलता की उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे चारों ओर जो वातावरण है उसमें सरलता तो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आबादी भी कम होती है तब भी लोगों के पास कंपटीशन होता है बिकॉज ऑफ द टैलेंट। आज टैलेंट भी है, आबादी भी है, और रिसोर्सेज भी है, इंटरनेट भी है। तो फिर देख लीजिए आप किस लेवल का कंपटीशन हमारे सामने रखा हुआ है। हमें उससे अडेप्ट करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ये कुछ बड़े स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम सुनिश्चित कर सकें विकास का।
Bilkul, I agree with your answer. Or we have many questions from our listeners. So next question we have that, at present this issue is very serious because there is a lot of difference between the standards used by organizations in India and the world to determine poverty and the actual ground reality. Generally, India is accused that instead of poverty in India, the poverty figures are decreasing. So, what are your thoughts on that? Can you repeat the last line? अच्छा, The हाँ, poverty वो figure? बोल रहे हैं कि हाँ, जैसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ना जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में दिखाते हैं और जो फिगर्स दिखा रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो आपको क्या लग रहा है कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है या जो स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है टू डिटरमाइन पॉवर्टी, तो उन दोनों में आपको कहीं गैप क्या दिखता है? देखिए, इसमें तो यही कहा जाएगा कि एक ट्रांसपेरेंट जो है सर्वे है, वो तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें हम इतना कुछ हमें इतनी अंदर की जो नॉलेज है, वो हमें नहीं पता कि वो लोग कैसे करते हैं, लेकिन हम तो उन्हीं पर अभी तक रिलाय करते हैं। हमारी जो एकेडमिक रिसर्चेज़ हैं, वो उसी पर रिलाय करती हैं और गवर्नमेंट जब अपने खुद का कोई काम करेगी, तो उसे ऑब्वियसली ज़रूरत है कि वो अपना खुद का डेटा लाए, क्योंकि जब डेटा ही नहीं होगा, तो हम कौन से पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के लिए वर्क कर पाएँगे। हम अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी जो समाज की दिक्कत है, उसको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता विदाउट द स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा। तो यहाँ पर है, मैं स्वीकार करता हूँ कि भारत सरकार की कुछ कमियाँ हैं, जिससे उन्हें सुधारना चाहिए और डेटा और एक ट्रांसपेरेंट जो अ, रास्ता है, उसे चुनना चाहिए, जिससे एक बेहतरीन आउटकम हो सके हमारे पास, डेटा हमारे पास हो सके एक बेहतर, और हमें ज़्यादातर रिलाय ना करना पड़े फॉरेन कंट्रीज़ पर। और लेकिन एक चीज़ इसकी ये भी बेहतरीन है कि फॉरेन कंट्रीज़ जब आपके पास आ रही हैं, तो उनमें 2 प्रोबेबिलिटी हमारे सामने आती हैं कि एक तो हो सकता है उनका बहुत ही बेहतरीन ट्रांसपेरेंट डेटा हो सकता है वो मैनिपुलेटेड हो। इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल प्रॉक्सी वॉरफेयर का हिस्सा होती हैं ये सारी चीज़ें। तो इस पर हम तो खैर हम में से कोई भी लोग कमेंट नहीं कर सकता कि अंदर की बातें कौन-सी चल रही हैं, क्योंकि ये तो हमारे बस से बाहर है। Okay, so we would be taking the last question and a very interesting question. And he is asking that how can we reevaluate and adapt the existing poverty reduction strategies in emerging challenges like climate change and technological development? देखिए, इस चैलेंजेस के लिए पूरी टॉक के बहुत सारे पॉइंट्स ही थे, जिसको मैं दोबारा से दोहराना ही चाहूँगा, क्योंकि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए हमें रीएवैल्यूएट करना है। सबसे पहले तो हमें अपनी पॉपुलेशन को एड्रेस करना पड़ेगा। अब इतनी पॉपुलेशन हो गई है, अब देखिए ये ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज़ हम इतने एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जस्ट जस्ट नेम हर चीज़ हमारी नज़रों के द्वारा एक्सप्लॉइट करी जाती है। हमें पानी की कदर नहीं है, हमें हमारे एयर की कदर नहीं है, हमें हमारी अर्थ की कदर नहीं है। जब हमें घर की ही कदर नहीं होगी, तो हमें बाकी का बाद में क्या मिलेगा? तो हमें जो रीएवैल्यूएट का जो सिस्टम है, वो हमें इसी पैमाने पे देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने क्लाइमेट को प्रिज़र्व करते हैं। क्योंकि देखिए, भारत जैसा देश है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है ना? जो और जो मानसून है, जो हमारा क्लाइमेट का पैटर्न है, उसी को हम बोलते हैं कि वही है असली हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही जब बीमार हो जाएँगे, जब उदास हो जाएँगे, तो फिर सारी चीज़ें तो ध्वस्त हो जाएँगी। तो हमें उनको स्वस्थ रखने के लिए ये सब काम करने पड़ेंगे और सबसे इसमें क्रिटिकल कंपोनेंट है कि क्लाइमेट को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि क्लाइमेट अगर खराब हुआ, तो हमारा जो उपजाऊ ज़मीन है, जो पंजाब के फार्मर्स आ रहे हैं, और फिर ये लोग और जगह-जगह से उठ के भी आएँगे, क्योंकि उपजाऊ नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, एमएसपी की डिमांड होगी, आतंक होगा, सिविल अनरेस्ट होगा, जो कि हमें अक्सर अभी से देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम होगी, फिर लोग अपनी सिक्योरिटी माँगेंगे, फार्मर सिक्योरिटी माँगेंगे। तो इससे जो पूरी चेन है, वो यहीं से जुड़ी हुई है, क्लाइमेट से और पॉपुलेशन से। हमें चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारत जो है, वो एक ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आता है, टेम्परेट रीजन में आता है। सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट का नुकसान है, वो हमें ही होने वाला है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और ये बहुत ही छोटी-सी समझदारी है। अगर ये भी नहीं पता है, फिर तो हम अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं और कुछ नहीं कर सकता। Very well answered, Sambhav, and thank you so much for the questioning round. One question is from my side that please elaborate about your experience with our team and about our platform.
जी, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जीएसटीएस। मैं इतना मतलब मैं जानता तो बहुत टाइम से हूँ, जब से इसकी फाउंडेशन रखी गई थी जीएसटीएस की अपने दोस्त के ज़रिए। वो उसने मुझे हम हमेशा से बताया है इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। उसने मुझे हमेशा से प्रमोट करा है कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर आऊँ, बोलूँ, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल कारण की वजह से मैं आ नहीं पाया, लेकिन आज जो मुझे मौका मिला तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। चीज़ें सीखने का कि मैंने कितने मिनिमम टाइम में अपने एफर्ट डाले, कितनी मैंने हार्ड वर्क करा अपने प्रेज़ेंटेशन को बेहतर करने के लिए। और मैं सच बताऊँ, मैं लगा ही हुआ हूँ चीज़ों को बेहतर करने के लिए। और जिस तरीके से मैंने कल टॉक दी अपनी और सर ने मुझे बताया, वो थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल लगी। मुझे एक नया आइडिया दिया, सोचने का एक मौका दिया। और मुझे लगा, क्योंकि मैं पॉवर्टी पे पहले से भी थोड़ी मुझे नॉलेज थी, लेकिन जब मैंने सर के साथ इंटरेक्शन करा, फिर सर ने कहा कि भारत से भी बाहर निकलो। तो मैं भारत से बाहर निकला, और जब मैं भारत से बाहर निकला, तो आपने देखा कि असलियत में गरीबी है क्या? पॉवर्टी ओवर द स्पेक्ट्रम है क्या? अफ्रीका में गरीबी, अमेरिका में गरीबी, कोई गरीब है? कोई ऐसा क्षेत्र बचा है जहाँ गरीबी नहीं है? तो ये सारे फैक्टर्स मैंने सीखे, सर ने मुझे बताया और मैं उसी डायरेक्शन में गया। मेरे दोस्त ने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा। प्रेज़ेंटेशन बनाने में उसने बहुत हेल्प करी, क्योंकि इतने कम समय में इतना नहीं हो सकता था। ये टीम वर्क का हिस्सा था, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेहनत करी और प्रेज़ेंटेशन बनाया, डेटा कलेक्ट करा, एक-एक चीज़ को वेरीफ़ाई करा, सीखने को बहुत कुछ मिला। और इसीलिए मैं और सबसे बड़ी चीज़ को कॉन्फिडेंस मिला, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। नर्वसनेस थोड़ी रिड्यूस हुई, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया हूँ मैं ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज़ का। Thank you so much, Sambhav. Thanks for this wonderful talk on our platform. Now we would be moving forward, and I would like to request our guest teacher for his valuable insights about the topic and about our platform. थैंक यू। और सर आवाज क्लियर है एकदम? एकदम। Yes, sir. सबसे पहले तो अभी मैं मेरे टीचर मेंटर डॉक्टर मनीष सर के बारे में ही बोलते हुए शुरू करूंगा, और फिर उसके बाद आपको फाइनल रिमार्क्स दूंगा। तो इस जीएसटीएस के फाउंडर हैं सर, और एक बहुत वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि 157th एपिसोड शायद ये है, और एक लंबी सीरीज चलती आ रही है, और हम सभी जो सर के स्टूडेंट्स हैं, हम सबको उससे लगातार बेनिफिट हो रहा है। तो इसके लिए सर हम आपके आभारी हैं, बहुत थैंकफुल हैं। और जो आपने आज संभव ने जिस टॉपिक पर बोला, वो बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से आपने इलेबोरेट करके चीजें प्रेजेंट की। और अच्छी बात ये रही कि आपने उसे इन्वायरमेंट से कनेक्ट किया। अभी यूनाइटेड नेशन की, इंडिया की और लगभग हर एक कंट्रीज की इन्वायरमेंट की अलग अलग पॉलिसीज हैं, और कुछ कॉमन पॉलिसीज भी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन चूंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो मैं थोड़ा हिस्ट्री से ही बात करना चाहूंगा। जो यूरोसेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड है, उसके हिसाब से जब हमने थियरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा, तो हमें बताया गया कि ये सर्वाइवल फिटेस्ट है। और इस सर्वाइवल फिटेस्ट को अब हमने ऐसा सर्वाइवल बना दिया है कि जिन चीजों से हमारा कोरिलेशन था, उस कोरिलेशन के कल्चर को ही हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है उस अंडरस्टैंडिंग में। और पहले ये नेचर, ये रिसोर्सेस हमारे लिए चैलेंज थे, अब हम इनके लिए चैलेंज बन गए हैं, और ये अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए पूरी तरीके से जो आपने गरीबी में एक बहुत बड़ा कारण इन्वायरमेंट को और आज के जो रिसोर्सेस की लड़ाई है उसको आपने देखा, तो वो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा रीजन भी है, और आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब उस चैलेंज के लिए यूनाइटेड नेशन की जो भी पॉलिसीज हैं या किसी भी कंट्री की पॉलिसीज हैं, वो इकोनॉमिक कंसर्न पर ज्यादा है बजाय कि रिसोर्सेस के। तो मेरा सुझाव भी है और मेरा मानना भी है कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपनी जो सबसे ओल्डेस्ट कल्चर है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको हम निभाएं। और उसको आज पूरी दुनिया को देने की भी जरूरत है, और खुद भी शुरुआत करने की जरूरत है। आपने 2021 में तुलसी गौड़ा को देखा होगा कि किस तरीके से नंगे पैर वो पद्मश्री लेने गई थी, और अकेली महिला ने एक कितना बड़ा जंगल खड़ा कर दिया। तो आज जरूरत इस बात की है कि हमारा जो कंजप्शन हम कर रहे हैं, या जो कोई इंस्टीट्यूशन है, धरती है, या जहां से हम पैदा हुए हैं, जो जो कुछ भी चीजें हैं, हम उनको रिटर्न में क्या दे रहे हैं। बीच में
जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बीच में कुछ पेपर्स ऐसे पढ़े होंगे जहाँ पे ऐसे कल्चर्स हमें पढ़ाए गए, जहाँ कुछ लोग खासकर जिन्हें प्रिमिटिव सोसाइटीज बोल दिया जाता है, या फिर यूरोसेंट्रिक अप्रोच में जिन्हें बर्बर या अनकल्चर्ड बोल करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। दुनिया की कितनी संस्कृतियां कोलोनाइजेशन के टाइम पीरियड में एकदम खत्म हो गई। अगर वो कंटिन्यू रहती ऐसे नेचुरली तो हो सकता था कि उसका फॉर्म कुछ और होता, पर चूंकि अभी मॉडर्न युग है, हम सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो हर चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते। होमोसेपियंस से होमोसेपियंस बनने में हमने बहुत कुछ खोया है, पर चूंकि अब हमारे पास हैंड्स बहुत हैं और अगर हम चाहें तो उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, एक अच्छा इकोसिस्टम अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि पर्सनल लेवल पे हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो उस कल्चर को जिसमें हम जितना गेन हमारा हो रहा है, जितना हम रिसोर्सेस पे अपना प्रेशर बनाए हुए हैं, उन रिसोर्सेस को रीच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे हमें थोड़ा ज्यादा गौर करना चाहिए। बाकी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, और आप सबका IQAC टीम श्यामलाल कॉलेज और वंस अगेन मनीष सर का और जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और आप प्लेटफॉर्म के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, अपने व्यूज? मैं तो लगातार जब से मनीष सर से जुड़ा हूँ तब से वो मेरे मेंटर भी हैं, और वो ड्यूटी ऑफ ड्यूटी हैं, तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती रहती है। तो सिंपल सी बात है कि ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है इसको जितना एक्सप्लोर हम कर सकते हैं, अगर मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आज मैं यहाँ जैसे भी हूँ, पर अगर आगे इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इसमें जुड़े। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सबसे अच्छी बात ये कि एक स्टूडेंट को आपके अंदर का एक डर खत्म होता है, और आप किसी टॉपिक पर आकर के जब बात करते हैं, बोलते हैं, तो आप में एक अलग तरीके का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अभी आज आप लोग सेक का पेपर भी पढ़ रहे होंगे, स्किल एनहांसमेंट, और मुझे लगता है इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है जो सर ने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। और मुझे लगता है पेपर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, सर ने उससे पहले शुरू कर दिया था। तो ये एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है उस चीज का, और आप लोग लगातार इस चीज को जारी रखें और ये और ज्यादा एक्सप्लोर करें, यही इसकी सार्थकता है। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. It's a pleasure to have you here. And now, moving forward, I would like to invite the speaker for next week, Mr. Saurabh. He's from Central University of Haryana, and he would be presenting a brief about his topic. Saurabh? Saurabh, present your objectives. Am I audible? Yes, you are. A very good afternoon to all the respected dignitaries present here, and especially to the guest of honor and Dr. Manish Kumar and Manvi ma'am, and our research scholar, Mr. Ravi Das Bishnoi from my university. And first of all, I would like to thank GSTS for providing me this digital platform to share my thoughts. And I, Saurabh Yadav, did my post-graduation from IIT Mandi, and currently I am doing my second master's from Central University of Haryana. My topic for the presentation will be geofolkism and oral narratives for sustainable developments. And my objectives will be to study the oral traditions and the religious practices for the Am I audible? Is my screen visible? Yeah, sure. Yes, your screen is Perfect. Yeah, audible. audible. Okay. My objectives will be to study the oral traditions and the religious practices through traditional ecological knowledge for the select geolocality. And mainly I will discuss about the two districts of Himachal Pradesh, mainly Mandi and Kullu district. And I will try to establish the relation between geofolkism, religion, and sustainable development with the help of oral history. The oral history mainly basically through folk tales, gridids, speeches, and folklore of the area. And I will try to show the socio-culture dimension and provide sustainability for the modern predicaments of the development in that area. And these will be my major objective for the talk. And I would like to invite everyone
on 10th March for joining me for the presentation. Thank you. Thank you so much, Saurabh. And I request everyone to join for the next week to listen to Geofocusm and Saurabh's views on the topic. And now, as we are coming to an end to our program, I want to wholeheartedly thank each one of you for finding time from your busy schedules and joining us today. Thank you again to all the teachers who are here with us today to support us in this initiative and motivating us to work with more dedication. इससे मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कि बढ़े चलो कि जमाने को ये दिखाना है, जहां हमारे कदम है वही जमाना है. So now, and I would now be handing over to Manish sir for vote of thanks. Okay, thank you. Thank you, Manvi. So now here starts my two duties. I'll invite you, few of my students and my colleagues, and after that I'll give you vote of thanks because we are having ample time, like 900 seconds we are having. So let's enjoy these 900 seconds, okay? So firstly, I invite few of my students. Firstly, I invite Miss Anushka Srivastava for her remarks about the topic, about what is her idea about the poverty. Anushka, if you are here, so kindly unmute yourself and give us your views. Yes, good afternoon, sir, and good afternoon, everyone present here. It was a very informative and excellent way of presentation, I would say. And the view about poverty is, I think, everyone believes that we are all aware about poverty. It is not a new thing. It has been existing in our country and many other countries since so many years. But we all just talk about how to elevate poverty and see what are being done, but the ground reality is something else. And I was very it was very nice to see how Sambhav was providing the absolute, data which he has been collecting, and this really shows his hard work. So Sambhav, I really congratulate you on that. And uh, I really congratulate for your hard work. And thank Thank you for this Anushka. very, Thank. very, Yes, very thank much. Yeah, Anushka. thank you No so issues. much. Yeah. Rana Pratap, if you are here, so you want to say something, Rana? जी जी सर नमस्ते। अ, सर जीएसटीएस वाकई बहुत अच्छा सीरीज चला रहा है। और मतलब कि मैंने कई बार सोचा इस मामले में, लेकिन कुछ कारणों से, व्यस्तता के कारण मैं नहीं कोई टॉपिक तैयार कर पा रहा हूँ। लेकिन जल्दी ही 10-15 दिन के बाद जो है मैं भी एक सीरीज, और ये जो भावना मेरे अंदर आई है, ये कहीं ना कहीं प्रेरित होकर के ही कि तमाम बंधु जो है ये इतने अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, और एक लीक से हट करके मतलब कि हर तरह के विषय को शामिल किया जाता है। यानी कि मल्टी डायमेंशनल चीज़ें यहाँ पर मिल पाती है, और अलग अलग चीज़ों की जानकारी। इसके लिए जीएसटीएस का मैं वाकई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी अच्छी जानकारी इतने फैक्ट के साथ, और मैं देखता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी होती है जो भी हमारे स्पीकर्स होते हैं उनकी। तो बाकी जब मैं तैयारी Thank करूँगा। you, Rana. Yes, thank you, Rana. And one of my former students, Ayush Raj, is here, and I want to that Ayush unmute yourself and give us some idea how to not just the platform, how to elevate, how to eradicate the poverty, and what's your view, Ayush? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर पहले तो प्लेटफॉर्म तो जितना भी प्लेटफॉर्म के बारे में कहा जाए वो तो बहुत कम है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आके ही सबसे पहले मैंने अपनी फियर ऑफ स्पीकिंग जो थी इन फ्रंट ऑफ पीपल उसको हटाया था। तो इस प्लेटफॉर्म ने तो मेरे को बहुत कुछ दिया है उस सेंस में। और दूसरा जो ये आज का टॉपिक था पॉवर्टी पे, मैं थोड़ा सा आई एम नॉट एंटी वेलफेयर, लेकिन मैं थोड़ा जनरल वेलफेयर के खिलाफ हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी न्यू लिबरल तरफ शिफ्ट होती है, वेयर आई फाइंड दैट वी शुड डू टारगेटिंग वेलफेयर।
जो वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए वो टारगेटेड होनी चाहिए और बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ जनरल वेलफेयर की हम जैसे अनाज दे देते हैं 5-5 किलो, वो जो स्कीम्स होती हैं कि 80 करोड़ लोगों में अनाज बांट दिया गया। अब इससे दिक्कत क्या होती है, इससे हैंड टू माउथ वाला सिस्टम जनरेट हो जाता है, जिसमें लोगों को सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस पे वो फोकस करते हैं, ना कि कोई कैपेसिटी बिल्डिंग हो नहीं पाती है। तो जब कोई कैपेसिटी बिल्डिंग होगी नहीं तो फिर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी उसको भी कोई अवेल नहीं कर पाएगा। तो जब वो नहीं होगा तो फिर कंटिन्यूअस जो इकोनॉमिक साइकिल है वो आगे बढ़ेगा नहीं, डिमांड होगी नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे नहीं उस चीज के लिए। तो आई एम मोर इन फेवर ऑफ टारगेटेड वेलफेयर एंड मोर अगेंस्ट जनरल वेलफेयर बेसिकली। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर हो सकता है। और प्लेटफॉर्म तो सर, प्लेटफॉर्म और आप इनका जितना भी मैं थैंक यू बोल सकूँ वो तो कम है सर। थैंक यू। Thank you, Ayush. And one of my another former student, Raj Thakur, is here. Raj, what's your idea about this? गुड इवनिंग सर। सर ये टॉपिक पे तो जो इससे भी बड़ा एक एस्पेक्ट, पॉवर्टी से भी बड़ा जो एस्पेक्ट है, जो कि हर प्रॉब्लम पे जो एक मेटा प्रॉब्लम की तरह आता है, वो है करप्शन का। मतलब हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा स्कीम्स आया है पॉवर्टी को लेके, फिर एक बड़ा प्रॉब्लम आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, इनइक्वालिटी का। इन सारे प्रॉब्लम्स में जो एक मेटा प्रॉब्लम बन के घुसा हुआ है वो होता है करप्शन का। कितने भी स्कीम ले आते हैं हम लोग, वो इफेक्टिवली जब तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा तो हम कितना भी ट्राई कर ले, वो तो पॉवर्टी तो फिर वही बात आ जाएगी। लोग आपको यही कोट करेंगे कि गरीब तो राम राज्य में भी थे। तो हर हमेशा ये गरीबी बोलेंगे, तो फिर ये मतलब अगर हम इसको अच्छे से काउंटर नहीं करेंगे तो वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव अगला आएगा वो आपको चुप करा देगा, ये बोल के कि अरे गरीब तो हमेशा रहते हैं। तो करप्शन एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हम जानते ही हैं कि किस तरीके से भारत को हैम्पर करता आ रहा है। तो ये भी एक ये मेटा प्रॉब्लम के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और Yeah, बाकी good, टॉक good, में जो good. डेटा का इस्तेमाल किया गया था, बाकी सही अच्छे तरीके से किया संभव ने प्रेजेंट आज तो। और बहुत बहुत बधाई संभव को और बहुत बहुत बधाई जीएसटीएस टीम को। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पे एच है, लगता है कि हमारे एक्स स्पीकर, फॉर्मर स्पीकर हैं। आई बिकॉज योर नाम इज नॉट इंस्क्राइब देयर, सो इफ यू वांट टू से समथिंग, सो मिस्टर एच, आई डोंट नो योर नेम, so I'm looking towards you. If you want to say something, so go ahead. आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। Okay, maybe some technical glitches. We'll talk to you the coming days. So last, I would like to invite one of my students, Mr. Abhas Kumar Saurabh. He has just written a piece of article and published in Yojna, from the art with intelligence to artificial intelligence. Abhas, if you are here, so what's your take on poverty? Abhas. Okay, so maybe so it's not too serious, just like another students of another speakers. Okay, thank you. So the wonderful, why? Because I suddenly invite each and everyone, be it Raj, be it Ayush, Anushka, and others scholar. So definitely they are listening. ये अच्छा लगा कि आप लोग सुन रहे हैं और आपने response किया. It's very great to have your views on this poverty and all these things. Okay, so again, thank you very much. First of all, Sambhav. I had 156 talks before this 157th. This is the one of the best talk I ever had on this platform. So really, it's a fantastic Sambhav, and I know we are in the very critical times at the GSTS, because one of my previous speakers, she just denied to come on this forum, but my students and you performed very well. And your topic, no doubt, you are the agriculture, Ramesh Kumar. You presented very amicably with the data, with the newspapers cutting. And the most important thing in your talk, that you
huge sources very amicably. And the area of thinking is very versatile. You use, and the important thing is, you mentioned March 2, 2024, 10:43 p.m. article by Siris Misra. So that shows that you are wondering for the new ideas till last night. So thank you very much, Samba, for giving us a very bright idea about the poverty, because poverty from इतने सालों से poverty सुनते आ रहे हैं एक्सेट्रा, और खत्म ही नहीं होती है, पता नहीं क्यों। हम लोग ढूंढ रहे हैं उसके बारे में। आपने भी जिस हिसाब से एग्रीकल्चर, एंड यू पिक एग्रीकल्चर एंड connect to the environment and basically climate changes, just I reiterated Mr. Jayant Sinha, who was a former MP from Jharkhand, and now he stepped down saying that I want to fight with global warming issue, so I'm not going to fight the next parliament election. So maybe it's a political, उनको पता हो गया होगा कि टिकट नहीं मिलेगा, but I'm not going to the political issue. But in front of Mr. Jayant Sinha, there are the bigger issues like the climate change and etc. So somehow it's really fantastic how you connect your agriculture poverty to the climate change, to the sustainable development. So it's really mind blowing, and you made my day without coffee. So really, it's fantastic, and thank you very much, Sambhav, for your brilliant talk. One of the best talk you use in this index, SDG goals, research, etc. Fantastic, and thank you for coming and rescued us through your talk. Thank you very much, Sambhav. And again, uh, professor in the college, Kalindi College, a very new intern in this field. So I'm very proud that you got selected in this field, Kausalendra. And why you have selected, why the selection committee selected you, proven this evening very rightly, that you gives us a very good idea and how you connect the past to the present to the future. So really, संभव और आपका टॉक सुन के अगर मिला दे तो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें पॉवर्टी एलिवेशन का समझ में आ जाता है। तो थैंक यू कौशलेंद्र for giving your time, precious time, though in the Sunday evening. So it's really great to hear you, and I'm really proud that a few years back, I taught you in the MPhil. So it's really a proud moment for me also. And we're moving further, that Manvi, as a moderator, you are absolutely fantastic as usual. So thank you, Manvi, for coordinating all the events. My other moderators, my graduate students from Samlal morning and Samlal evening, all. And one of the best thing that Sambhav is from Bareilly, so many students are from Bareilly. So it's not Delhi University or University Ruhelkhand University. It's the what you are having. And Delhi University always welcome those kind of students who are upright. So somehow I welcome in future in the Delhi University, and your future is very bright. So again, thank you, Samlal morning and Samlal evening students, my MA, my MPhil, my PhD students, my colleagues from the different departments. I'm very elated that you joined and give us time of rejoice. And after very long, we reached towards the 74 or 75 students joining in this evening 5 to 6. So it's a wonderful evening. So thank you very much. And it's clock ticking towards the 6 o'clock. So I'm waiting till 6. Prashant, you want to say something because you unmute yourself. You want to say something, Prashant? Yes, go ahead. Go ahead, Prashant. प्रशांत, लगता है कुछ इशू है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
Okay, next time, definitely Mr. H and Mr. Prasant, I'll invite you next time. So you do connect. So thank you very much. Have a nice day. Again, Sambhav, Kausalens, Manvi, and all of my friends. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you, Thank you very much, Kausalens. sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.